અમદાવાદમાં બુકનું વિમોચન કરતી અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝા. અમદાવાદ ખાતે ઉદ્યોગ સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝાની ઉપસ્થિતિમાં વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પુસ્તકના લેખક અનુરિતા રાઠોડ જાડેજા છે. જાણીતા ઉદ્યોગ સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું વિમોચન અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફ, બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સામાજિક કાર્યકર દિયા મિર્ઝા, RR સેઠ પબ્લિશર્સના ડિરેક્ટર ચિંતન શેઠ, પુસ્તકના લેખિકા અનુરિતા રાઠોડ જાડેજા સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પુસ્તક અમદાવાદના અગ્રણી પ્રકાશના ગૃહ RR સેઠ એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક ઉદ્યોગ સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના વિચારો અને કાર્ય પદ્ધતિ ઉપર એક ઊંડી સમજ પૂરી પાડે છે. જેઓએ શિક્ષણ અને સામાજિક કાર્યની શાળાઓ અને સંસ્થાઓ ચલાવવાના કારણે સંભાવનાઓને વાસ્તવિકતાઓમાં ફેરવવાની કળાને સારી રીતે પકડવા ઉપરાંત માનવ વ્યવહાર અને વ્યવસ્થાપન સુમેળ સાથેની અદ્ભુત સમજ પ્રાપ્ત કરી છે. ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફે પોતાના જીવનના એવા રસપ્રદ પાસાઓને વહેંચ્યા છે તે અનેક લોકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડશે. આ પુસ્તક એક એડ્યુપેન્યોર પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ, રમતગમતના ઉત્સાહી કેલોરેક્સ ગ્રુપના MD અને CEO ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફ અને તેમના માનસિક, શારીરિક અને સામાજિક પરિણામોને સંતુલિત કરીને લોકોને જાગૃત જીવન પ્રત્યે સમર્પિત જીવન યાત્રાનું વર્ણન કરે છે. આ પુસ્તકમાં 19 પ્રકરણો છે જે ડોક્ટર શ્રોફના જીવનના શિક્ષણની રૂપરેખા અને અભ્યાસ કરવા ઉપરાંત ઝડપી સંદર્ભ અને સરળ વાંચન માટે દરેક પ્રકરણમાં વિવિધ પેટા શિક્ષક પ્રદાન કરે છે. रिपोर्टिंग बाय संजीव राजपूत साथे हनीफ शेख. करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि आप सब उनकी किताब पढ़ेंगे और उनसे वो चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल करने के बाद हम सबके साथ शेयर किए हैं. ये किताब के बाद कोई प्लानिंग है इस पे मूवी या कुछ प्रमोट करना है? शी इज़ एक्चुअली, तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंगली ये मैम ने लिखी हुई है. उनकी जो आजकल ना लोग पूरी किताब नहीं पढ़ते एंड आई थिंक द पब्लिशर्स एंड द ऑथर अंडरस्टैंड दैट. तो उन्होंने क्या किया है, जो सेक्शंस हैं इनकी लाइफ के और जो इंस्पिरेशंस हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सेपरेट करके अंडर डिफरेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं. तो आप किताब का कोई भी पन्ना पढ़ के खोल के पढ़ सकते हो और ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पढ़ते होते तो ज़्यादा समझ आता ये वो. So it's a book that you can just pick up and read at any point, anywhere, which is encouraging क्योंकि lots of people don't have the time and the patience anymore to read a full book. So whenever you feel like a shot of inspiration, you just pick up the book and open a page and read it. That's the most interesting thing. तो आपका सवाल क्या था? मूवी नहीं बन सकती. जो ये फॉर्म में है उस फॉर्म में मूवी नहीं बन सकती. लेकिन मैं इनके मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इनसे करने वाली हूँ और होपफुली ये मुझे जवाब देंगी और शायद मूवी भी बन सकती है क्योंकि इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है. उसमें ऐसा कोई इमोशनल पॉइंट जो आपको लगे? आई थिंक यू नो, जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं वो सभी के लाइफ में होते हैं, चाहे वो रॉयल्टी से क्यों ना हो. एंड दैट टू मी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द बुक कि हम सबको लगता है कि ऑफ कोर्स जो जिस परिवार में हम पैदा होते हैं उसमें हमारा कोई से नहीं होता, वो मतलब डेस्टिनी होती है. बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट is up to us. So that for me is the most interesting aspect. और सेक्शंस हैं लाइफ के जिनकी जो इनकी लर्निंग्स हैं वो जो एक्सेसिबल बनाती हैं बुक को. आई थिंक किसी भी चीज़ से प्रेरणा मिलना वो तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी की स्टोरी से जुड़ जाते हैं. इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी बहुत सारी वाक़यात हुई हैं जिसकी वजह से इनकी जर्नी जो है वो डिफ़ाइन हुई है और उस जर्नी से ही इंस्पिरेशन हमें मिलता है. इनका जो प्रकृति की तरफ
के प्रति प्यार है वो मैं भी मतलब बहुत मानती हूँ प्रकृति में, और मैं जानती हूँ उस प्यार को। लेकिन जिस तरह से वो मतलब वो जो सिंपल फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उसे जो रिमाइंड करती हैं, वो रिमाइंडर्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर पीपल। क्योंकि शायद कोई इनकी किताब उठा ले, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने इतनी सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खोली हुई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, या शायद कोई उनको बहुत एलिगेंट माने, किसी भी कारण के लिए वो बुक उठा ले, लेकिन वो उठाने के बाद उनको जो लेयर्स हैं पर्सनालिटी के, जो कैरेक्टर को बनाती हैं, वो आई थिंक मिलेंगी। और एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक वी आर ऑल सीकिंग, राइट, टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। थैंक यू। तो आप थोड़ा ज़्यादा बात करोगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ऐसी ख्याल हैं, ऐसी बातें हैं विच नोबडी नोज ऑफ। वो जब मुझे पता चला, जैसे इनके साथ कुछ भी बात करो लाइफ के बारे में, फिलॉसफी, थ्योरीज, ट्रैवल, लव फॉर ट्रैवल, साइकिलिंग करती हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, योगा खुद से सीख गई, खुद से सीख गई। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं मालूम। जब बच्ची थी छोटी कौन करता है अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा है, जैसे मैं खुद ही आजकल एक्सरसाइज करने का 1 साल से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही। शायद मैं इनका वो एक पैसेज अगर पढ़ लूँ तो मुझे, हाँ, ऑन कंसिस्टेंसी, तो मुझे लगेगा कि ओके कर लेना चाहिए, किसी ने किया है। तो ऐसे तो आपको, मैं तो कहूँगी 50-100 नहीं, काफ़ी सारे जेम्स मिलेंगे किताब में जो आपको लगेगा। इसीलिए इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू विमेन. Of course, she's a woman. I am the one who's a writer, and the one who conceived it is a woman. The one releasing it and celebrating it today is a woman. But this book की जो आप बातें पढ़ेंगे वो that are almost equally applicable to men. Yeah, absolutely. All of them. And like I said, वो subheads हैं, तो it will be easy. कोई भी महिला होती है उसकी सक्सेस स्टोरी सब जानना चाहते हैं द्वारा। अब आपको पूरी दुनिया समझने वाली है, तो फीलिंग्स बताइए कैसा है? पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ना आपकी खुद की जो बैरियर है, दैट आपकी वनरेबल साइड है ना, कोई दिखाना नहीं चाहता। इतने साल लग गए मेरे स्टोरी लिखने में, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वनरेबिलिटी इन द स्टोरी। आप जब आपके, एंड एवरीबडी हैज़ दैट, मैंने पहले भी कहा है, हर एक के लाइफ में है। यू हैव सक्सेस, यू हैव फेलियर, all of us have it. Today I'm very fortunate that she's sitting here talking about my life. You think there's any less in her life? Or any woman here? Woman इसलिए मैं कहती हूँ because it's a man's world. Yeah. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो। She's been around the world. There is a difference between men and women. And I'll tell you, जो हम progressive women हैं, we consider ourselves equal. हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए. That's all. So, I just want to say that failure and vulnerability के बारे में लिखा जाना चाहिए. Because Bill Gates का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बोलना पड़ेगा. He says, success is a lousy teacher. Success teaches you not to fail. बट फेलियर, जो लेसन सब सीखते हो ना, कभी नहीं भूलते। एंड दोज आर द थिंग्स दैट इफ यू डोंट टेल, अदर्स विल नॉट लिसन, विल नॉट थिंक इट्स ओके। और मेरे लिए खास करके, बिकॉज आई लीड यूथ, मुझे ये दिखाना है उनको दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉल, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट अप एंड रन। एंड हाउ यू गेट अप। हाँ, फिर दूसरी बात है कि हमेशा